the controversial remarks of BJP spokesperson Nupur Sharma and one Mr. Naveen Jindal related to Prophet Muhammad created or produced all the furore and the way of protest across the Arab Islamic world and the other nations. Now, the government of India, in order to calm down the diplomatic turmoil, distanced itself from the controversial remarks, stating that it does not brook any insult or affront to any religious personality. So far, so good. On the other hand, in UP, Chief Minister Adityanath Yogi does not brook or does not tolerate any protest. This is the contradiction. मुझे फारसी का एक दूसरा याद आ रहा है, मन खूब मी शनासम इन पीराने पाठसारा, मन खूब मी शनासम इन पीराने पाठसारा। एक उर्दू का अच्छा शेर है, मैं अंधेरे में हरगिज न रहता, मुझे धोखा दिया रोशनी ने, मुझे धोखा दिया रोशनी ने। अभी आप देखते हैं कि इस पर जो अमायदीन है, जो प्रोमिनेंट शख्सियात है, पर्सनैलिटीज है, उनके क्या रिएक्शन है। मिस्टर शशि थरूर has questioned the legality of bulldozing or the demolition. He asked, is the local government in UP has exempted itself from the Constitution of India? Mr. Shashi Tharoor would like to know under what law, under what process this demolition is being carried out. Mr. Asaduddin Awaisi asked, what is the big idea in maintaining courts when UP CM himself becomes the Chief Justice of UP? Mayawati said this is like targeting a particular community. An eminent Muslim scholar, Maulana Saifullah Rahmani, condemned this and associated bulldozing with a sort of terrorism. So these are the remarks of prominent personalities, and others also did not go along with the deplorable bulldozing or questionable bulldozing. Now in this context, I would like to read certain lines of the editorial of Hindu, very leading newspaper. Hindu said, the demolition of houses and buildings linked to protest in Uttar Pradesh, linked to protesters in Uttar Pradesh is nothing but retribution and collective punishment targeted at Muslims. हिंदू के एडिटोरियल में बताया गया कि ये मुसलमानों की
इज्तिमाई टारगेटिंग है और ये इंतकाम है, इंतकामी कार्रवाई है। हिंदू बता रहा है कि जो जान मोहम्मद की प्रॉपर्टी है वो उसकी बीवी के नाम पे नोटिस जान मोहम्मद को दिया जाए और वो द डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेसिडेंस ऑफ जान मोहम्मद, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एक्टिविस्ट एंड बिजनेसमैन इन प्रयागराज shortly after he was identified by the police as an alleged conspirator behind the violence during a protest and demonstrations. हिंदू बता रहा है कि ये जो इनामी कार्रवाई है ये सब बता रही है और हिंदू ने बताया कि ये जो है बीवी की प्रॉपर्टी है, नोटिस शौहर को दिया जा रहा है, नोटिस 1 दिन पहले दिया जा रहा है और तारीख 10 में की है। अब हिंदू ने तो काफी अच्छा लिखा है। हाँ, इट इज वेल नोन दैट द रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट और इलीगल कंस्ट्रक्शंस कैनॉट टेक प्लेस विदाउट ड्यू प्रोसेस, which includes giving the owner or occupier an opportunity to be heard and finding alternate accommodation under any existing rehabilitation scheme. हिंदू बता रहा है कि कोई भी इलीगल इंक्रोचमेंट या कंस्ट्रक्शन वो बगैर ड्यू प्रोसेस के आप तोड़ नहीं सकते। आप उसको बगैर ड्यू प्रोसेस के आप उसको डिमोलिश नहीं कर सकते। और हिंदू बता रहा है कि ड्यू प्रोसेस क्या है कि जो ओनर है या ऑक्यूपायर है उसको मौका दिया जाए कि वो अपनी बात रखे और जो भी एग्जिस्टिंग रिहेबिलिटेशन की स्कीम है उसके अंदर उसको अल्टरनेट एकोमोडेशन या मुताबादिल जगह मिलनी चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं, हिंदू ने अब वक्त पूरा तो नहीं हम कर सकते हैं, पूरा तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन हिंदू ने काफ़ी अच्छा लिखा है। ये लिखा है क्या, इट इज नाउ अ वेल एस्टैब्लिश्ड पैटर्न दैट buildings belonging to those whose names are linked with or without evidence to riots or protest are chosen for demolition. For political purposes, it is presented as stringent action against antisocial elements for rioting, or for legal purposes, it is portrayed as removal of illegal constructions. हिंदू लिखता है कि एक पैटर्न बन गया है कि जिनका नाम किसी प्रोटेस्ट से या राइट से लिंक होता है उनकी प्रॉपर्टी को तोड़ डालो, उनको डिमोलिश करो। और हिंदू लिखता है कि विथ और विदाउट एविडेंस, एविडेंस रहे या नहीं रहे। और उसमें लिखा है उसने कि एक तरफ ये जो है एंटी सोशल एलिमेंट्स के लिए स्ट्रिंजेंट एक्शन बताया जा रहा है और दूसरी तरफ ये लीगल पर्पसेस के लिए बताया जा रहा है कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है। तो हिंदू ने काफी अच्छा इदारिया लिखा है इस पर, पूरा इदारिया तो पढ़ा नहीं जा सकता, हिंदू ने इसको डिप्लोर किया। दूसरी बात यह है कि ये जो अरबाब इक़्तिदार हैं, क्या उनको फसाद के बाद, राइट के बाद, प्रोटेस्ट के बाद मालूम पड़ता है कि ये इलीगल है और एक मखसूस तबके को अलेजेडली टारगेट किया जा रहा है, विच इज स्टेटेड बाय मायावती।
तो ये जो बुलडोजिंग की कार्रवाई है, हाँ, आखिर में आप देखते हैं कि कुछ सुप्रीम कोर्ट के प्रोमिनेंट माजी के जो जजेस हैं और जो हाई कोर्ट के जजेस, फॉर्मर 6 जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं और कुछ प्रोमिनेंट एडवोकेट्स हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये इल्तिजा की है कि लेट सुप्रीम कोर्ट टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस, सुप्रीम कोर्ट इसका कॉग्निजेंस ले। और मैं हिंदुई का जुमले पे अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, अपनी बात का इख्तिताम कर रहा हूँ कि हिंदू ने कहा इट इज नथिंग बट रिट्रीब्यूशन, और रिट्रीब्यूशन है, ये इंतकाम है, ये इट इज रिट्रीब्यूशन और इट इज नथिंग बट कलेक्टिव पनिशमेंट। एक शेर मुझे याद आ रहा है, इंतकाम है नन्नो इंतकाम मुझसे मेरे साथ साथ चल के। कुमार बाराबंकी का एक शेर है, ये वफा की सख्त राहें, ये वफा की सख्त राहें, ये तुम्हारे पाए नाजुक, न लो इंतकाम मुझसे मेरे साथ साथ चल के। एंड लास्टली आई एम extremely thankful and grateful to Mr. Asi Bedkar and Endless Assistant channel for uploading our videos. And lastly, I thank you all.